afterwards also, it is up to you. If you want, you can write simultaneously. So I write first term solution. Solution, I said it is homogeneous mixture. The solution is a homogeneous mixture. And solution has two components. The first one is solute. Second one is solvent. जल्दी लगा. So solution has two components, solute and solvent. Ensure that all the windows are open for ventilation. Now, how you have to decide which one is solute and which one is solvent? So for that, there are certain rules. Rule is that solvent always have the same physical state as that of solution. So solvent always have same physical state. Solvent always have same physical state as that of solution. This is the first condition, which is quite rigid. Solvent should always have the same physical state as that of solution. This is the compulsory condition. If you form any solution, then solvent will always have the same physical state as that of solution. So whenever you have a solute and solvent in a different physical state, then the substance having the physical state of solution is solvent. And the other one is solute. Is it clear? Solution is a homogeneous mixture. First thing, solution has two components, solute and solvent. Second thing, then I said that solvent always have the same physical state as that of solution. Means if solute and solvent are as in different physical state, means if solute and solvent are in different physical state, then the substance having same physical state as that of solution is solvent. So definitely the other substance is solute. Is that clear? Now the problem will arise when solute, solvent and solution, all three are in same physical state. So in that state, the substance which is lesser in terms of number of moles. So in that case, the substance which is lesser in terms of number of moles will be solute. Okay. So second statement you have to write. So first thing I said that solvent should always have the same physical state as that of solution. Second point, if you write, no, I'll send you the recording, need not to worry. In that case, your audibility will be weak. It is good if you just listen and note down. The recording I'll send you after the lecture. So you need not to do that thing. Otherwise, your bandwidth will not support. So it will create many times in the audibility and whatever I'm writing in board, it will lag. So it will be good. I'll send the recording as well as the slides, whatever I'm writing. Okay, sir. So first thing I said, solution is a homogeneous mixture. This is first thing. Second thing I said, solution has two components, solute and solvent. Third point I said that solvent always have the same physical state as that of solution. Third point you have to note down. If solute, solvent and solution, if solute, solvent and solution, if solute, solvent and solution, all three are in same physical state. If solute, solvent and solution, all three are in same physical state, then the substance in lesser quantity by mole is solute. If solute, solvent and solution, all three are in same physical state, then the substance in lesser quantity by mole is solute. If solute, solvent and solution, all three are in same physical state, then the substance in lesser quantity by mole is solute. So now let me explain you. Let's say I'll take sugar, which is C12H22O11, and I'll add water to this, and it forms a liquid solution.
सबसे पहला टर्म लिया हमने sugar, this is C12H22O11 sugar. Second substance is water, and we got liquid solution. So solution is in liquid state. Here sugar is solid, water is liquid. So in the first statement I said that solvent should always have the same physical state as that of solution. So sugar and water form the liquid solution. I've explained to you that solvent always have the same physical state as that of solution. So here solution is in liquid state, water is in liquid state. So definitely this is solvent. Whatever is the amount, that doesn't matter. And this one will be solute. Okay. But if I take acetic acid and water, and it also forms a liquid solution, then here the second case will arise. Here acetic acid is liquid, water is also liquid, solution is also liquid. So in that case, if I'll take 0.1 mole of acetic acid and 10 moles of water, then the lesser amount is acetic acid, so this one will be solute. Or if you will take a different case, where you'll take 10 moles of acetic acid and 0.1 mole of water, then in that case, your water will be solute. So need not to confuse. Mostly water is solvent, but in case of liquid and liquid state, where solute is also liquid, solvent is also liquid, and solution is also liquid, in that case, the substance in lesser quantity is solute. This is the point. So I'll quickly review what I said. If you are connected later, so just review it quickly. First thing I said, there is solution, which is a homogeneous mixture. Solution has two components, solute and solvent. Solvent always has the same physical state as that of solution. Solvent always have the same physical state as that of solution. Then I said, if solute, solvent and solution, all three are in same physical state, then the substance in lesser quantity is solute. And I have given you the example. Yes, Harsh, you want something? Harsh, you want to ask something? See, like this, if you disturb, then it will lead to nowhere. I'm trying to explain something. If it is not clear, then you may ask the doubts. If you have to create nuisance, I can stop your video or audio, whatever you will say. See, I have asked so many times that everyone has to mute themselves. What should I do if everyone will start like that? First, I'll teach or I'll mute everyone every time off. Okay, so this point is clear to everyone. Now, the second part, which is important for this chapter, in case like I'm not audible to you, in that case, what you have to do is you have to disconnect and connect. That is a problem of your network. Do it quickly so that I'm audible to you. Okay, so example I can explain you again. I said, first thing I said, first you understand the rule. That is the most important thing, because typical questions of this. So first understand the rule. I said solution is a homogeneous mixture. Homogeneity means you understand means it is one phase. In solution, there are two components, solute and solvent. Then I said solvent always have the same physical state as that of solution. Means solution and solvent always have same physical state. If your solution is liquid, solvent will be liquid. If solution is solid, your solvent will be solid. If solution is gas, then your solvent will be gas. So solvent and solution always have same physical state. This is compulsory. Second thing I said, if solute, solvent and solution, all three are in same physical state, then the substance in lesser quantity is solute. This is the primemost thing. So with the example I have explained you that sugar and water solution is liquid solution. So in that case, solution is liquid, water is liquid, sugar is solid. So your water is solvent, sugar is solute. So this is clearly bifurcation. Then if I add acetic acid to water,
and the solution formed is liquid solution. The solution formed is liquid solution. So in this liquid solution, your acetic acid is liquid, water is also liquid. Okay. So if both are liquid, then there are two cases. If acetic acid is 0.1 mole and water is 10 moles, then water is solvent, acetic acid is solute. And if reverse is the case, acetic acid is 10 mole, water is 0.1 mole, then water will be solute. Directly proportional is mathematical relation. It is state of matter same. You can't say directly proportional. Directly proportional is mathematical relation that if you take 10 ml of this, then it will be 10 ml of this. So it is not with respect to volume. It is simply with the state of matter. State of matter of solvent and solution should be same. Clear? Then the second point is that is concentration terms. And this is also the portion. Sir, can you repeat what you told before? It's not understood before concentration. Before concentration, I said if solute and solvent are in same physical state, then the substance in lesser quantity is solute. So with the example I have explained you that acetic acid water case, if acetic acid is liquid and water is liquid, so if you take 0.1 mole of acetic acid and 10 moles of water, so water is more, acetic acid is less, so acetic acid is solute, water is solvent. And if reverse is the case, where acetic acid is 10 mole, water is 0.1 mole, then your water is solute. So if solute, solvent and solution, all three are in same physical state, then the substance in lesser number of moles is solute. Is that clear? Yes, sir. Thanks a lot. Okay, perfect. So now move to the second term, which I said it is concentration term. Concentration means that we have to report amount of solute or solvent with respect to solution. Mostly solute with respect to solution. Mostly it is solute with respect to solvent or solution. Okay. So concentration terms will represent in two ways. First representation is qualitative representation. And the second one is quantitative representation. Qualitative representation and quantitative representation. So qualitative means if you will prepare such, if you will report this kind of concentration, then you simply have an idea about the solution, that what type of solution is this. You can't say what exact amount of solute is present in the solution. And if you want to report the amount, then we go for the second process, that is quantitative measurement, yeah, quantitative representation. So if I go with the first one, so the first type of classification over here is dilute and concentrated solution. Dilute and concentrated solution. So when you go to your laboratory, you'll see there are many solutions where it is written as dilute H2SO4, dilute HCl, dilute HNO3, or many times it is concentrated H2SO4. So with that, you just understand that how much harmful it is or what is how much higher concentration is, but you can't exactly say that what is the amount. So it is just for the laboratory representation. Whenever we write dilute solution, simply means that amount of solute is negligible with respect to solvent, and whenever we say concentrated solution, it means amount of solute is significant with respect to solvent. Okay. So first term you have to write dilute and concentrated solution. I have written dilute and concentrated solution. Okay. So in qualitative representation of the concentration term, first term we are writing is dilute and concentrated solution. Okay. So first term you write if amount of solute is negligible, if amount of solute is negligible, if amount of solute is negligible,
if amount of solute is negligible with respect to solvent, it is dilute solution. If amount of solute is negligible with respect to solvent, if amount of solute is negligible with respect to solvent, then it is dilute solution. And if amount of solvent is significant with respect to solvent, it is concentrated solution. ठीक है? Is that clear? अभी कोई किसी को डाउट होगा तो मैं बता रहा हूँ, अब एक मिनट रुकिए, एग्जांपल्स भी बता रहा हूँ, need not to worry, just wait for a minute. I said if amount of solute is negligible with respect to solvent, it is dilute solution. And if it is significant, with respect to solvent, it is concentrated solution. Okay, so few of you have raised your hand to ask something. Just ask. एक डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है. डाइल्यूट सॉल्यूशन वो हुआ जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट नेग्लिजिबल है. कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन वो हुआ जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सिग्निफिकेंट है. इट इज लाइक जैसे सपोज दैट आई टेक 1 liter of water, in that I'll add 1 gram of sodium chloride. So in 1 liter of water, if you add 1 gram of sodium chloride to it, is dilute solution. But suppose करो अगर शुगर की solubility बोलूं तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में शुगर अप्रोक्सीमेटली 40 ग्राम या 36 ग्राम के आसपास soluble होता है 100 ग्राम वाटर में. So if in 100 gram of water, you'll simply add, let's say, 20 gram of glucose or 20 gram of sugar. So you may say concentrated solution. Got the point? जैसे आप लैबोरेटरी में जाते हो तो लैब में जो नॉर्मल हम उसे डाइल्यूट करते हैं या उसकी कॉन्सेंट्रेशन लोअर डाउन करते हैं तो उसे डाइल्यूट सॉल्यूशन. क्लियर हुआ अभी? Okay, so this is first type of classification which is simply useful in your laboratory, nothing beyond that. In terms of question, it will come when we go to the colligative properties, then this term will be relevant. तो वहाँ पे आपको उसको थोड़ा और explain कर दूंगा. अभी go for the next term. Second type of classification is unsaturated solution. Saturated solution and supersaturated solution. So this is another type of classification जिसमें अपने solutions को तीन तरीके से देखो. अपने आप को म्यूट रखोगे तो it will be good for you. Whenever you have doubt, at that time you will ask. Otherwise, it will disturb you a lot. ठीक है? तो अभी मैंने लिखा दूसरा type of classification which is unsaturated solution, saturated solution and supersaturated solution. तो तीन तरीके के terms define कर रहे हैं. अब इनको one by one लिख लेना, और तो आप पहले से भी जानते हो. Not less soluble. Unsaturated doesn't mean solute is not less soluble. आप more amount of solute dissolve कर सकते हो. अभी आप एक बार लिख लो, फिर मैं समझाता हूँ आपको. Just a minute. So first term is unsaturated solution. First classification तो clear है ना सबको, dilute and concentrated solution. इस type के classification को हम लोग laboratory में use करते हैं केवल. इस type के classification को हम लोग केवल laboratory में use करते हैं. Dilute and concentrated solution. Second type of classification जो है वो हमारे लिए relevant है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसलिए उस चीज को समझा रहा हूँ. सो वी हैव थ्री टर्म्स: अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ओके,
So first term you'll write unsaturated solution. So first term लिख रहा है unsaturated solution. So write down when more amount of solute can be dissolved. What is this nonsense? So write down unsaturated solution. I said when so unsaturated solution we are writing. Write down. So write down when more amount of solute can be dissolved. More amount of solute can be dissolved in a solution at a given temperature. When more amount of solute can be dissolved in a solution at a given temperature, then it is unsaturated solution. When more amount of solute can be dissolved in a solution at a given temperature, when more amount of solute can be dissolved at a given temperature in a solution, it is unsaturated solution. अभी टेक्निकलिटी में भी बता रहा हूँ, पहले आप बेसिक डेफिनेशन लिख लो. सेकेंड टर्म लिख रहा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन. दूसरा टर्म लिखे सैचुरेटेड सॉल्यूशन. So for saturated solution, it write down when no further amount of solute can be dissolved in a solution, when no further amount of solute can be dissolved in a solution at a given temperature, then it is saturated solution. And the third term is supersaturated solution. Third one is supersaturated solution. For this, you will write down if we dissolve more amount of solute, in a saturated solution, if we dissolve more amount of solute in a saturated solution by increasing temperature, and then suddenly cool the solution
then suddenly cool the solution to the original temperature then till the time precipitation is going on. Just a minute, first let me complete, then I'll repeat. Then till the time precipitation is going on, it is supersaturated solution. So check it again. I said, if we dissolve more amount of solute in a saturated solution, if we dissolve more amount of solute in a saturated solution by increasing temperature, and then suddenly cool the solution to the original temperature, and then suddenly cool the solution to the original temperature, then till the time precipitation is going on, it is supersaturated solution. ठीक है, नोट कर लिया? अब इसको ध्यान रखना रहता है. If you do like this, then I have to take some disciplinary action. आप में से एक दो लोगों को मुझे लीव कराना पड़ जाएगा. So please don't do that. I don't want that. I wish कि आप ठीक से पढ़ लो. If you have some difficulty, I am here for you. But like that, you don't have any right to disturb. ठीक है? Okay. So अब पॉइंट बाय पॉइंट समझना है. जैसे सपोज करो हमारे पास एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है ग्लूकोज का, लेट्स से 25 डिग्री सेल्सियस. तो उसमें हमें पता है कि 100 ग्राम में लेट्स से 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज सॉल्युबल है. तो इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अगर आप फर्दर ग्लूकोज ऐड करोगे तो इट वोंट डिसॉल्व. तो ये तो हुआ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अगर मान लो 36 ग्राम से कम ग्लूकोज डिसॉल्व कराया हुआ, लेट्स से हमारे पास 100 ग्राम वाटर में हमने 20 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व किया है, तो अगर आप इसमें फर्दर ग्लूकोज ऐड करोगे तो वो डिसॉल्व हो जाएगा. तो इट विल बी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. इसके बाद सैचुरेटेड सॉल्यूशन का हमने टेम्परेचर बढ़ाया, तो आप जानते हो टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है. ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट. इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज. आपने टेम्परेचर और उस 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इंक्रीज करके लेट्स से 30 डिग्री सेल्सियस किया, तो जब 30 डिग्री सेल्सियस कर दोगे तो उसमें और अमाउंट ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व हो जाएगा. एंड देन सडनली रिड्यूस द टेम्परेचर फ्रॉम दैट 35 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस. तो जो नया सॉल्यूशन बनेगा उसमें से प्रेसिपिटेशन चलेगा. अगर प्रेसिपिटेशन चलेगा तो जितनी देर तक प्रेसिपिटेशन चलता रहेगा उतनी देर तक वो सॉल्यूशन को सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा. क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? सो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है? अब इस चीज को थोड़ा सा मैथमेटिकली समझाता हूं. सो आप लोगों ने 11th क्लास में एक सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा. तो लेट्स से हमने एक सॉल्ट लिया AXBY, इसको डिसॉल्व कराया, तो ये x मोल्स ऑफ AY प्लस y मोल्स ऑफ BX माइनस ये डिसॉल्व हुआ. अब मैं आपको तीनों टर्म एकदम क्लियरली समझा रहा हूँ क्योंकि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही बात समझनी है. डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ट्रांसपेरेंट लेवल रिक्वायर्ड था. सो हमने एक सॉल्ट किया AXBY सॉलिड फॉर्म में,
सो x मोल्स ऑफ ay प्लस एंड y मोल्स ऑफ bx माइनस बन रहा है। तो अगर हम यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करें, लेट्स से QSP, so QSP is active mass of ay plus power x into bx minus power y. This is your QSP. ठीक है। अब आपको पता है कि अगर QSP की वैल्यू KSP से कम होगी, KSP is solubility product, इस इक्विलिब्रियम के लिए हमारे पास अगर KSP नोन है, this is solubility product, so this is equilibrium constant. So by that time QSP is less than KSP, तो ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। फॉरवर्ड में शिफ्ट होगा मींस more amount of solute can be dissolved, so it is unsaturated solution. So till here clear, ये फर्स्ट पॉइंट सबको समझ आया कि अगर हमारी QSP की वैल्यू KSP से कम होगी तो ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। सो इन दैट केस हम इस सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। So QSP less than KSP is forward direction. Forward direction में more amount of solute can be dissolved. Once more amount of solute can be dissolved, we'll say it as unsaturated solution. ठीक है? Second term is if QSP equal to KSP. So if QSP equal to KSP, it means it is equilibrium. Equilibrium means आप फर्दर इसमें और अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड नहीं कर पाओगे, सो नो फर्दर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी एडेड अप। तो इसको बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नहीं बताओ इक्वेशन से अभी समझाता हूं फिर से, पहले पूरी बात कंप्लीट कर दूं। एंड देन द लास्ट पॉइंट, इफ QSP इज ग्रेटर देन KSP, जिनको पता है वो पहले ठीक से समझ लो। सो QSP ग्रेटर देन KSP, तो ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा, इसका मतलब प्रेसिपिटेशन होगा, और अगर प्रेसिपिटेशन होगा तो उसको बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आप पूरी बात फिर से देख लो। so, दिस इज एक्चुअल डेफिनेशन जो आपको समझनी है, बिकॉज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यही कंटेंट सीखना है। बिकॉज इसके पहले वाली जो डेफिनेशन है वो ज्यादातर 9, 10, 7 पे आप लोग सीखते हो, तो चूंकि फंडामेंटली मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता था इसलिए मैंने आपको पूरी बात बताई। एक्चुअल में आपको ये समझना है। सो दिस इज एक्चुअली द केस ऑफ सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम। मैं आपको फिर से पूरी बात समझा रहा हूँ, तो लिसन इट केयरफुली। मैंने टर्म लिखा सबसे पहले कि हमारे पास एक सॉल्ट है AXBY जो सॉलिड फॉर्म में है, उसको वाटर में हमने डिसॉल्व कराया। तो जब वाटर में डिसॉल्व कराएंगे तो इफ यू ऐड वाटर, इफ यू डिसॉल्व इट इन वाटर, तो क्या होगा कि जो सॉलिड फॉर्म में वो डिसॉल्व होकर एक्वस फॉर्म में पहुंचेगी। सो आयनिक फॉर्म में बना x मोल्स ऑफ AY प्लस एंड y मोल्स ऑफ BX माइनस, इसके एक्वस फॉर्म बना। तो हमने क्या करा, एक टर्म डिफाइन किया QSP। QSP इज रिफर्ड एज आयनिक प्रोडक्ट। तो अगर आप इसमें देखो, एक सब्सटेंस है AY प्लस, तो उसके एक्टिव मास को लिखा। सो AY प्लस का एक्टिव मास पावर x, BX माइनस एक्टिव मास पावर y, जो कोएफिशिएंट है वो पावर में लिखा हुआ है। एक्टिव मास इज पावर, द कोएफिशिएंट्स इज QSP। सो AY प्लस पावर x, BX माइनस पावर y। अगर ऐसे नहीं क्लिक कर रहा तो आपने ऐसे सीखा होगा, इसका सिंपल वर्जन लिख रहा हूं मैं। जैसे आपने AgCl सॉलिड वाला केस पढ़ा होगा, यहाँ पे Ag सॉलिड और Ag एक्वस और Cl माइनस एक्वस में कन्वर्ट किया होगा, और फिर आपने इसका QSP Ag प्लस इंटू Cl माइनस लिखा होगा। समझ आया? सो QSP इज अ मैथमेटिकल टर्म जो मैंने डिफाइन करा, which is same as active mass of power x, bx minus power y। अगर ये वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होगी तो इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा होगा,
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ये वैल्यू कम होगी तो ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ज्यादा हो जाएगा तो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट समझ में आया? So QSP is a mathematical, मैंने डिफाइन करा एक्टिव मास ऑफ ay प्लस पावर x bx माइनस पावर y। ठीक है, अब अगर QSP की वैल्यू KSP के बराबर हो जाएगी, यानी QSP इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर है, रिएक्शन कोएफिशिएंट आपने इक्विलिब्रियम में सीखा होगा टर्म, अगर ऐसे नहीं क्लिक कर पा रहे हो। ठीक है, सो QSP की वैल्यू अगर KSP के बराबर होगी तो इक्विलिब्रियम, उसको बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि उसमें फर्दर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, दूसरे पॉइंट में बताया कि अगर QSP लेस देन KSP है तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। इक्विलिब्रियम अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो इसमें आप और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं। और तीसरा केस अगर QSP ग्रेटर देन KSP होगा तो इन दैट केस आप फर्दर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? चलो इसके बाद हम लोग अगले सेगमेंट पे चलेंगे। प्लीज अपना माइक म्यूट करो, इतना सिंपल सी बात आपको समझ नहीं आ पा रही, पता नहीं आप लोग कैसे डील कर रहे हो। See, when you have doubt at that time you may ask, otherwise simply mute yourself. It's not a good practice. QSP and KSP again. You need not to worry. I can remove as many of you not to want to attend the lecture. मेरे लिए कोई problem नहीं है. Why do I mute you so many times? See, it disturbs me also. I have to mute you every time. This is not a practice. Okay, so let's say you want to ask something. Ask, please. Okay, so इतना पॉइंट सबको पहले क्लियर हो गया? So first point I said AX BY is मैं एक बार फिर से क्विकली इस चीज को समझा देता हूँ because this is most important point. इसी से क्वेश्चंस मिलने वाले आपको एग्जाम में, इसलिए पूरी बात फिर से समझ लेनी है। मैंने आपको बताया AX BY एक सॉलिड है जिसमें x मोल्स ऑफ AY प्लस और y मोल्स ऑफ BX माइनस एक्वस सॉल्यूशन में है। एक टर्म डिफाइन करा QSP जिसमें एक्टिव मास ऑफ AY प्लस और BX माइनस है, पावर्स x और y अप्लाई किया हुआ है। अगर QSP लेस देन KSP है तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा तो इसका मतलब आप सॉलिड फॉर्म डिसॉल्व करा के एक्वस फॉर्म में ले जा रहे हो, मतलब मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। If more amount of solute can be dissolved, then it is unsaturated solution. If QSP equal to KSP, then it is equilibrium. Equilibrium case में आप further amount of solute नहीं dissolve करा सकते, so it is saturated solution. And the third case, when QSP is greater than KSP, equilibrium will shift in a backward direction. It is precipitation, means supersaturated solution. QSP जो लोग पूछ रहे हैं वो फिर से ध्यान से देखो, मैंने आपको बोला QSP is a mathematical term. जैसे आप लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम के टाइम पे Q सीखा था, Q रिएक्शन कोएफिशिएंट, Q is reaction quotient, वैसे यहाँ पे solubility के केस में उसको QSP बोलते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम में Q और KC सीखा था, QC एंड KC,
वैसे सॉल्युबिलिटी में KSP और QSP होता है. ओके, अब बस इसमें एक और बस थॉरो पॉइंट याद रखना है. अगर किसी भी सॉल्यूशन के साथ टेम्परेचर मेंशन नहीं किया जाएगा, then that solution can be assumed unsaturated, saturated और super saturated depending upon our will. क्योंकि सॉल्यूशन के साथ टेम्परेचर मेंशन करना जरूरी है, तभी आप बता पाओगे कि सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है या सुपर सैचुरेटेड है. अगर आप टेम्परेचर मेंशन नहीं करोगे तो इन दैट केस आप उसी सॉल्यूशन को सैचुरेटेड भी बोल सकते हो, अनसैचुरेटेड भी बोल सकते हो, सुपर सैचुरेटेड भी बोल सकते हो. बिकॉज अगर टेम्परेचर चेंज करने की परमिशन होगी तो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केस भी चेंज कर जाएगा. तो आउट ऑफ दीज थ्री कंडीशन इज लाइक, जैसे हमारे पास एक ग्लूकोज सॉल्यूशन है जो 20 डिग्री सेल्सियस पे सैचुरेटेड है, तो सेम सॉल्यूशन को 25 डिग्री सेल्सियस पे अनसैचुरेटेड बोल सकते हैं और सेम सॉल्यूशन को 15 डिग्री सेल्सियस पे सैचुरेटेड बोल सकते हैं, तो 15 डिग्री सेल्सियस पे सुपर सैचुरेटेड बोल सकते हैं. तो अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है जो 20 डिग्री सेल्सियस पे, अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है जो 20 डिग्री सेल्सियस पे सैचुरेटेड है, तो सेम सॉल्यूशन को एट अ टेम्परेचर अबव 20 डिग्री सेल्सियस वी कैन से unsaturated solution, and at temperature less than 20 degrees Celsius we will say it's super saturated solution. So this is important point. Last purpose is for add kar lijiye. So write down a solution, a same solution can be, a same solution can be, a same solution can be saturated, 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 unsaturated or supersaturated depending upon temperature. A same solution can be saturated, unsaturated or supersaturated depending upon temperature. For example, if a solution is saturated, for example, if a solution is saturated at T degree Celsius, if a solution is saturated at T degree Celsius, then same solution will be unsaturated at a temperature less than T degree Celsius. The same solution can be unsaturated at a temperature greater than T degree Celsius and supersaturated at a temperature less than T degree Celsius. So I said, for example, if a solution is saturated at T degree Celsius, then same solution will be unsaturated solution at a temperature greater than T degree Celsius and supersaturated at a temperature less than T degree Celsius. जो कि मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था कि अगर 20 डिग्री सेल्सियस पे कोई सॉल्यूशन सैचुरेटेड है तो वही सॉल्यूशन 25 डिग्री सेल्सियस पे अनसैचुरेटेड हो जाएगा और 15 डिग्री सेल्सियस पे सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा. क्लियर? Okay. So this is first segment of the chapter where we use dilute solution, concentrated solution, saturated solution, unsaturated solution, and supersaturated solution. Okay. Now the second type of classification was quantitative measurement.
सो क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन से हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को 10 यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं. सो दीज यूनिट्स आर परसेंटेज बाय वेट, percentage by volume, percentage by weight by volume, mole fraction, molarity, molality, formality, normality, ppm and ppb. These are the concentration terms जो हम लोग amount represent करने के लिए use करते हैं. So for quantitative representation, we'll use percentage by weight, percentage by volume, percentage by weight by volume, mole fraction, molarity, molality, formality, normality, ppm and ppb. Sir, we can't hear you. बोलूंगा तब मैं सुनाई देगा. रुक जाओ अभी नोट डाउन करना है. क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन मैंने 10 यूनिट्स बताई. परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय वेट बाय वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, मोलालिटी, फॉर्मेलिटी, नॉर्मलिटी, पीपीएम, पीपीवी. ठीक है. हमारे लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर में सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड होते हैं क्योंकि पूरे चैप्टर में कॉन्सेंट्रेशन रीयूज होता है. ऑल्दो ये वो पोर्शन है जो आपने क्लास 11 में भी पढ़ रखा है, बट इसको थोड़ा सा रिपीट करना होता है क्योंकि 12th बोर्ड में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो डेफिनेटली ये पोर्शन क्लास 11 और 12th का कॉमन पोर्शन है, बट क्लास 12th में भी लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ते टाइम में कॉन्सेंट्रेशन यूज करने पड़ते हैं, तो इंटर कन्वर्जन रिक्वायर्ड होते हैं. इसमें क्वेश्चंस भी आते हैं, इसलिए मैं पूरी बात आपको दोबारा बता रहा हूँ. वंस इट इज डन फिर हम अभी चैप्टर में आगे प्रोसीड कर जाएंगे. तो अभी हमें क्या करना है, इसमें 1 by 1 कॉन्सेंट्रेशन प्रोसीड करने में आपको सारी कॉन्सेंट्रेशन बता रहा हूँ एक एक करके. इफ यू नो सम इट्स गुड, अगर नहीं जानते हो तो फटाफट नोट डाउन करते हुए चलना है. सो लेट मी स्टार्ट विद परसेंटेज बाय वेट. एनसीईआरटी में आपका सेकंड चैप्टर है सॉल्यूशन. ऑल्दो एनसीईआरटी में सॉलिड स्टेट फर्स्ट चैप्टर है, बट वो बोर्ड के सिलेबस से अभी हटा दिया गया है. बढ़ता रहता है, आता रहता है, तो वो लास्ट तक देखिएगा. अगर आ जाएगा तो यू प्रिपेयर फॉर इट, अगर रिमूव हो जाएगा सीबीएसई से तो इट्स ओके. अभी सॉल्यूशंस चैप्टर है हमारे लिए, जो हमारे सीबीएसई का मेन यूनिट है. उसका ये प्राइमरी पोर्शन है जो क्लास 11 में भी पढ़ाया जाता है. 12th में उसको इसलिए रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस इसी प्रोसेस से सॉल्व होंगे. क्लास के एंड में मैं आपको एक होम असाइनमेंट दूंगा, आप उसको सॉल्व करिएगा, तो आपको इस तरह के सारे क्लैरिटीज आ जाएगी, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं ऑल दैट. और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोगों से डिस्कस करेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. अभी आपको सिर्फ टेक्निकल टर्म्स सीखने हैं, विच इज इंपॉर्टेंट राइट नाउ. जो आप जानते हो इट्स ओके, आप उसे छोड़ सकते हो. जो नहीं जानते हो उसको लिखते चलना है. हमने पहला टर्म लिखा परसेंटेज बाय वेट. सो राइट डाउन इट इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स. It is the amount of solute in grams present in 100 gram of solution. It is the amount of solute in grams present in 100 gram of solution. This is your first unit. Percentage by weight is equal to तो डेफिनेशन रिपीट करो ना. हाँ राइट डाउन. मैंने बोला इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स. आपको कोई चीज नहीं समझ आएगी तो आप चैट बॉक्स पे रिपीट लिखोगे, मैं बता दूंगा. ऑल्दो मैं एक दो हर चीज 2-3 बार तो रिपीट कर ही रहा हूँ डिफॉल्ट. आई नो देयर आर सम कनेक्टिविटी इश्यूज, देयर आर सम प्रॉब्लम्स. आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर आल्सो, नीड नॉट टू वरी. अगर आपका कुछ मिस हो जाएगा तो आप बाद में रिकॉर्डिंग से समझ लीजिएगा.
बोर्ड पे जो भी लिख रहा हूँ मैं इसकी स्लाइड सारी आपको भेज दूंगा बाद में। आप उस टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए मत परेशान होइए, समझने पे फोकस रखिए, बस डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करना है, दैट इज द प्राइम मोस्ट थिंग। सो हमने टर्म लिखा परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वेट में लिखे इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स, it is the amount of solute in grams, it is the amount of solute in grams present in 100 gram of solution। केयरफुली नोटिस करना है, यूनिट सॉल्यूट और सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंटेड है, ना कि सॉल्वेंट। बी केयरफुल। सो इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स it is the amount of solute in grams present in 100 gram of solution। और अगर फॉर्मूला लिखना है तो परसेंटेज बाय वेट इज इक्वल टू मास ऑफ solute in grams अपॉन मास ऑफ solution in grams into 100। ठीक है, सेकेंड टर्म लिखेंगे परसेंटेज बाय वॉल्यूम। So write down it is volume of the solute in milliliter, it is volume of the solute in milliliter present in 100 ml of solution। It is the volume of the solute in milliliter, it is the volume of the solute in milliliter it is the volume of the solute in milliliter present in 100 ml of solution। तो अगर इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो इट इज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन मिलीलीटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू 100। तीसरा टर्म लिखेंगे परसेंटेज बाय वेट बाय वॉल्यूम। परसेंटेज बाय वेट बाय वॉल्यूम। परसेंटेज बाय वेट बाय वॉल्यूम। Percentage by weight by volume। So write down it is the amount of solute in grams it is the amount of solute in grams present in 100 ml solution। ओके, सो अब इस चीज को पूरा फिर से रिव्यू करा रहा हूँ। तीन बातें मैंने बताई। सो देखो, अगर रिकॉल करना है तो कैसे रिकॉल रहेगा। सो परसेंटेज बाय वेट बाय वॉल्यूम मैंने बोला इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ml solution। It is the amount of solute in grams present in 100 ml solution। तो आप देखो रिकॉल कैसे रहेगा, ध्यान से समझना है।
सारे टर्म परसेंटेज है तो परसेंटेज इज ऑलवेज आउट ऑफ 100, एक पॉइंट. अगर वेट लिख रहे हैं तो वेट एंड वेट, सोल्यूट का भी वेट लेना है, सोल्यूशन का भी वेट लेना है. व्हेन वी आर राइटिंग वॉल्यूम तो सोल्यूट का भी वॉल्यूम लेना है, सोल्यूशन का भी वॉल्यूम लेना है. एंड व्हेनेवर वी राइट वेट बाय वॉल्यूम तो सोल्यूट का वेट लेना है और सोल्यूशन का वॉल्यूम लेना है. समझ आया? मैंने आपसे बोला कि परसेंटेज है तो दैट मींस परसेंटेज है, दैट मींस एवरीथिंग वी हैव टू रिपोर्ट आउट ऑफ 100, एक पॉइंट. When I said weight, percentage by weight, तो weight टर्म में मतलब weight by weight है, सोल्यूट का भी वेट लेना है, सोल्यूशन का भी वेट लेना है. When I said percentage by volume, तो सोल्यूट का वॉल्यूम लेना है और सोल्यूशन का भी वॉल्यूम लेना है, so both are volume. And when we'll take weight by volume, तो सोल्यूट का वेट लेना है और सोल्यूशन का वॉल्यूम लेना है. क्लियर? आउट ऑफ 100 है तो परसेंटेज है. ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखो तो आपको समझ आएगा. So write down 20 gram of glucose is dissolved in 100 gram of water. 20 gram of glucose is dissolved in 20 gram of glucose is dissolved in 100 gram of water. Then find its concentration in terms of percentage by weight. Sir, please can you repeat? I said 20 gram of glucose is dissolved in 100 gram of water. Then find the concentration in terms of percentage by weight. And its answer is not 20. So solve it carefully. 20 gram of glucose is dissolved in 100 gram of water. Then find its concentration in terms of percentage by weight. क्वेश्चन बहुत सीधा है बट कॉन्सेप्ट समझना है आपको. सो आई सेड 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज ये आपका सोल्यूट है और 100 ग्राम ऑफ वाटर ये आपका सॉल्वेंट है. और आपको मैंने स्पेसिफाई करा था कि यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूशन चाहिए होता है. सो मास ऑफ सोल्यूशन इज मास ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट. सो योर परसेंटेज बाय वेट विल बी इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 100. So it is 16.67%. परफेक्ट, ये ठीक है. सो आपको ट्रिक समझ आ गया? मतलब इसमें बस गलती एक ही करा सकता है आपसे कोई भी कि आप सॉल्यूशन की जगह सॉल्वेंट का मास लिख जाओगे, बिकॉज इट लुक्स क्वाइट ऑब्वियस. जैसे मैंने बोला 100 ग्राम वाटर तो आपको लगेगा तुरंत 20% हो गया. सो बी केयरफुल एट दिस पॉइंट. हमें जब भी परसेंटेज में रिपोर्ट करना है, परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय वेट बाय वॉल्यूम, सो ऑल द कॉन्सेंट्रेशंस आर विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन. एक पॉइंट, वेट है तो सोल्यूट का वेट, सोल्यूशन का वेट. वॉल्यूम है तो सोल्यूट का वॉल्यूम, सोल्यूशन का वॉल्यूम. वेट बाय वॉल्यूम है तो सोल्यूट का वेट और सोल्यूशन का वॉल्यूम. पॉइंट क्लियर हो? और परसेंटेजेस आउट ऑफ 100 में रिपोर्ट करना है. क्लियर? यहां तक समझ आ गया सबको? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना है. So into 100 इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 16.67 समथिंग. इसके बाद नेक्स्ट टर्म लिखेंगे मोल फ्रैक्शन. नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन. So the third unit is mole fraction. Fourth unit is mole fraction. अब देखो नाम से ही क्लियर है, we are writing fraction and to with respect to moles. So in this case, what you have to do is let
Number of moles of solute is small n. So I said that number of moles of solute is small n and number of moles of solvent is capital N. Okay. So here mole fraction of solute will be equal to moles of solute upon moles of solute plus solvent. And mole fraction of solvent will be equal to moles of solvent upon solute plus solvent. I said let number of moles of solute is small n. मैं लिख भी रहा हूँ बोर्ड पे, आप वही चीज नोट करना है. Let number of moles of solute is small n. Number of moles of solvent is capital N. Then mole fraction of solute is n upon n plus n. Small n upon small n plus capital N. And mole fraction of solvent is capital N upon n plus n. और अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे यहाँ पे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1. और यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देनी है, मोल फ्रैक्शन का नोटेशन होता है काई. एक्स बनाना है और एक लाइन को टिल्ट कर देना है. So mole fraction of solute plus mole fraction of solvent is 1. और यहाँ पे एक और टेक्निकल टर्म यूज करते हैं बाइनरी सॉल्यूशन. बहुत बार आएगा क्वेश्चंस में, तो वो भी यहीं पे बता दे रहा हूँ साथ साथ. बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक सोल्यूट है और एक सॉल्वेंट है, उसमें दो कॉम्पोनेंट, तो दिस इज बाइनरी सॉल्यूशन. सॉल्यूशन आप ऐसा भी बना सकते हो इसमें एक से ज्यादा सोल्यूट ले लो. जैसे पानी में आपने शुगर भी डिसॉल्व कर दिया, सॉल्ट भी डिसॉल्व कर दिया, तो वो बाइनरी सॉल्यूशन नहीं बचेगा. ठीक है. तो अगर ऐसा सॉल्यूशन है इसमें एक ही सोल्यूट और एक ही सॉल्वेंट है तो उसको हम लोग टेक्निकली बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं. तो बाइनरी सॉल्यूशन के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हमेशा 1 आ जाएगा. ठीक है. So can't hear you. Beta, I said number of moles of solute is small n, number of moles of solvent is capital N, mole fraction of solute is n upon n plus n, mole fraction of solvent is capital N upon n plus n, mole fraction of solute plus solvent अगर दोनों को ऐड करके देखोगे तो 1 आ जाएगा. और फिर मैंने एक टेक्निकल टर्म बोला बाइनरी सॉल्यूशन. बाइनरी सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं जिसमें एक सोल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है. ठीक है. Is that clear? इसके बाद नेक्स्ट हम लिखेंगे मोलारिटी. नेक्स्ट अब लिखिए मोलारिटी. मोलारिटी विल रिप्रेजेंट विद द कैपिटल M. बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब बताया ऐसा सॉल्यूशन जिसके लिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट होता है. ठीक है. ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट होगा उसको बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे. दो सॉल्यूट एक सॉल्वेंट होगा तो टर्शरी सॉल्यूशन बोलेंगे. तीन सॉल्यूट एक सॉल्वेंट होगा क्वाटरनरी सॉल्यूशन बोलेंगे. बट वो सब हमारे कोर्स में नहीं है. हमारे कोर्स में केवल बाइनरी सॉल्यूशन आएगा. सो बाइनरी सॉल्यूशन मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके लिए एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट होगा. ठीक है. ओके यहाँ तक. तो जैसे हमने मान लो एक सॉल्यूशन लिया, वाटर लिया, उसमें ग्लूकोज डिसॉल्व कराया, बाइनरी सॉल्यूशन. वाटर लिया, शुगर डिसॉल्व कराया, बाइनरी सॉल्यूशन. वाटर लिया, सॉल्ट डिसॉल्व कराया, बाइनरी सॉल्यूशन. बट वाटर लिया और शुगर और सॉल्ट दोनों डिसॉल्व करा दिए तो ये बाइनरी सॉल्यूशन नहीं है. हाँ, सॉल्वेंट इज ऑलवेज वन बिकॉज एक ही सब्सटेंस को बार-बार डिसॉल्व करा रहे हैं.
जितने भी कंपोनेंट होंगे उसमें सॉल्वेंट केवल वो वाला कंपोनेंट होगा जिसकी फिजिकल स्टेट सॉल्यूट से मैच करेगी। सॉल्वेंट केवल वही कंपोनेंट होगा जिसकी फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट सॉल्यूशन से मैच करेगी। और अगर अमाउंट के टर्म में देखेंगे तो जो कम अमाउंट में होगा वो सॉल्यूट होगा। तो सॉल्वेंट हमेशा एक ही सब्सटेंस होगा। ठीक है, चलो अगला टर्म लिखेंगे। अगला टर्म लिखो मोलारिटी। मोलारिटी इज कैपिटल एम। सो राइट ऑन द नेक्स्ट टर्म। हाँ, किसी भी सॉल्यूशन में दो सॉल्वेंट नहीं हो सकते। अगर फिजिकल स्टेट मैच भी कर जाएगी तो फिर मैंने आपको डिफरेंस बताया ना, जो कम अमाउंट में होगा वो सॉल्यूट होगा। If suppose two substances have same physical state as that of solution, तो उसमें जो कम अमाउंट में होगा वो सोल्यूट हो जाएगा, दूसरा वाला सॉल्वेंट हो जाएगा। तो फिजिकल स्टेट अगर मैच भी कर रही है तो जो अमाउंट कम में होगा वो सोल्यूट, ज्यादा वाला सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमेशा एक ही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लिख रहे हैं मोलारिटी विल रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। सो राइट डाउन इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। It is number of moles of solute present in 1 liter solution. बेटा दो सोल्यूट दो सॉल्वेंट हो ही नहीं सकते ना, यही तो बता रहा हूँ, सुन ही नहीं रहो ध्यान से। मैंने आपसे बोला कि अगर हमारे पास एक सोल्यूट है, आपने मान लो बोला कि दो सॉल्वेंट है, लेट से आपने वाटर लिया और साथ में एसिटिक एसिड लिया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये बात समझाई थी। तो अगर एसिटिक एसिड और वाटर दोनों लिक्विड है और सोल्यूशन भी लिक्विड है, तो इन दोनों में से कोई एक सॉल्वेंट होगा। कौन सा वाला सॉल्वेंट होगा? जिसका अमाउंट ज्यादा होगा। जिसके मोल्स कम होंगे वो सोल्यूट होगा, जिसके मोल्स ज्यादा होंगे वो सॉल्वेंट होगा। तो सॉल्वेंट हमेशा एक ही होगा। ठीक है, सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट हमेशा सॉल्वेंट से मैच करेगी, एक पॉइंट। और अगर एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस होगा जिनकी फिजिकल स्टेट मैच कर जाएगी, तो फिर जो ज्यादा अमाउंट में होगा उसको सॉल्वेंट बोलेंगे, जो कम अमाउंट में होगा उसको सॉल्यूट बोलेंगे। क्लियर? तो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट एक ही आएगा। नेक्स्ट हमारी साइड मोलारिटी। मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अब उसी को अगर फॉर्मुलेशन में लिखेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू 1000। ये आपका फॉर्मूला हो गया मोलारिटी के लिए। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू 100। सॉरी 1000, जस्ट करेक्ट, स्किप हो गया। Number of moles of solute present in 1 liter solution. So number of moles of solute upon volume of the solution in milliliter into 1000. हाँ, अगर दो सॉलिड्स को मेल्ट करके मिक्स करेंगे तो अलॉय बनेगा। अलॉय इज सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। जैसे ब्रास है तो ब्रास इज अ सॉल्यूशन। ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज इज अ सॉल्यूशन, सो इट इज सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। वहां पे भी सेम लॉजिक लगेगा। सॉलिड 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 तीनों सब्सटेंस हो गए, तो जो कम मोल्स में होगा वो सॉल्यूट होगा, ज्यादा मोल्स में होगा सॉल्वेंट होगा। रूल इज यूनिवर्सल, एक रूल के लिए नहीं बता रहा हूँ, इट इज ऑलवेज वैलिड। किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूशन और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट मैच करेगी। अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्यूशन तीनों की फिजिकल स्टेट मैच करने लगेगी तो जिसके मोल्स कम होंगे वो सॉल्यूट होगा। ठीक है, अभी मैंने नेक्स्ट टर्म लिखा मोलारिटी। मोलारिटी इज कैपिटल एम। आई सेड इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। So formula is number of moles of solute upon volume of the solution in milliliter into 1000. ठीक है, इसका नेक्स्ट टर्म लिखेंगे मोलालिटी। मोलालिटी will represent with small m.
Molarity is small m. So write down it is number of moles of solute. It is number of moles of solute. It is number of moles of solute present in 1 kg solvent. अब देखो यहाँ चेंज आया. अभी तक मैंने सारी यूनिट आपको सोल्यूशन वाली बताई है. So molarity is small m. So write down it is number of moles of solute. It is number of moles of solute present in 1 kg solvent. Write it carefully. It is number of moles of solute present in 1 kg solvent. Number of moles of solute upon mass of solvent in grams into 1000. ये आपका हो गया मोलालिटी. अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है. नोटिस इट केयरफुली. एक तो यहाँ सॉल्वेंट है और दूसरा मास है. Whereas in the last unit यहाँ पे वॉल्यूम था और सॉल्यूशन था, क्योंकि अभी इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक दूसरे में, इसलिए केयरफुली डिफरेंस नोटिस कर लीजिए. When we are writing molarity, then it is volume and solution. When we are writing molality, then it is mass and solvent. Is that clear? Then the next term is formality. अभी एक old unit है and current time में same as molarity होता है, इसलिए इसमें कुछ खास बात नहीं लिखनी है. आउटडेटेड यूनिट है, बट कभी कभी क्वेश्चन पेपर में लिख के आ जाता है, तो आपको परेशान नहीं होना है. जहां पे भी फॉर्मेलिटी पूछा जाएगा वहां पे आपको मोलारिटी निकालना है, कैपिटल एम वाला, नॉट मोलालिटी. मोलारिटी MOLARITY. सो फॉर्मेलिटी सेम एज मोलारिटी. आउटडेटेड यूनिट है, करंट टाइम में यूज नहीं करते, बट क्वेश्चन पेपर में ऐसा लिखा जा सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. अगर फॉर्मेलिटी कोई पूछ रहा है तो आपको एकदम कॉन्फिडेंस में मोलारिटी निकाल देना है, लिख फॉर्मेलिटी देना, दैट्स इट. तो सॉल्विंग अ क्वेश्चन बोथ मेक डिफरेंस. फॉर्मेलिटी इज सेम एज मोलारिटी इन करंट टाइम. Okay, and then the next term is normality. Normality will represent with capital N. So write down it is number of gram equivalents of solute. It is number of gram equivalents of solute present in 1 liter solution. It is number of gram equivalents of solute. It is number of gram equivalents of solute it is number of gram equivalents of solute present in 1 liter solution. So your formula is number of gram equivalent of the solution in milliliter into 1000. Sir, how we will find the number of gram equivalents? For that I'm telling you, gram equivalents जैसे हम लोग मोल्स निकालते हैं ना, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वैसे ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं मास अपॉन इक्विवेलेंट मास. अभी लिखे दे रहा हूँ मैं अलग से. So number of gram equivalents will be equal to mass in grams upon equivalent weight. जिस भी सब्सटेंस का आपको नॉर्मलिटी रिपोर्ट करना है, तो सॉल्यूशन के आपको मास इन ग्राम्स
अपॉन इक्विवेलेंट वेट। फॉर्मेलिटी में बेटा कोई स्टेटमेंट नहीं, फॉर्मेलिटी सेम एज मोलारिटी। आउटडेटेड यूनिट है तो उसके पीछे नहीं पड़ना है, क्वेश्चंस में कभी कभी आ जाता है तो इसलिए मैंने आपको टेक्निकली बता दिया। नॉर्मलिटी के लिए आई साइड इट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट, और नॉर्मलिटी आई साइड इट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट, number of gram equivalents of solute present in 1 liter solution. ठीक है, common this is ppm and ppb. So ppm is called parts per million, and I hope million आप सब पहचानते हो, million is 10 power 6. And the second unit is ppb. This is called parts per billion. And your billion is 10 to the power 9. बेटा इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला होता है, जैसे एलिमेंट के लिए इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए लिखते हैं, के लिए मास अपॉन बेसिसिटी लिखते हैं, बेस के लिए मास अपॉन एसिडिटी लिखते हैं, रेडॉक्स के केस में मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट लिखने के लिए मोलर मास ऑक्सीजन स्टेट। आपने देखा होगा इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, रेडॉक्स रिएक्शन में सिखाया होगा इक्विवेलेंट वेट निकालना। अगर नहीं आता तो क्लास ऑन सम अदर डे तब पूछ लीजिए, ठीक है। So ppm is parts per million, ppb is parts per billion, 1 million is 10 power 6, 1 billion is 10 power 9। तो नाम से क्लियर है, पार्ट्स पर मिलियन मतलब 10 power 6 पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट ले लो, उसमें जितने पार्ट सोल्यूट के होंगे दैट इज ppm, एंड सिमिलरली पार्ट्स पर बिलियन में बिलियन पार्ट, 1 बिलियन पार्ट सोल्यूट होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, पहले मैं वो आपको क्लियर कर दूं। द क्वेश्चन इज कि हाउ मेनी ऑफ दीज यूनिट्स आर टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड हाउ मेनी आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, इवन इन जेईई मेंस एग्जामिनेशन, नीट एग्जाम, जेईई एडवांस, बोर्ड सब तरह के, हर तरह के एग्जाम में सवाल आ चुका है, बहुत यूनिफॉर्म क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से समझना है। द क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। सो लॉजिक इज, आप जानते हो कि जो मास है वो हमेशा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, और जो वॉल्यूम है वो हमेशा टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। इज दैट क्लियर? So mass will be always temperature independent and volume is always temperature dependent. तो ऐसी यूनिट्स जिसमें केवल मास के टर्म आ रहे हैं वो सब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, और ऐसी यूनिट्स जिसमें वॉल्यूम वाले टर्म्स आ रहे हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें दो तरीके के क्लासिफिकेशन मार्क करने पड़ेंगे, एक टर्म होगा टेम्परेचर डिपेंडेंट और एक टर्म होगा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। सो ऐसी यूनिट्स जो केवल मास वाले टर्म कैरी कर रहे हैं वो सब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, और ऐसी यूनिट्स जिसमें वॉल्यूम वाले टर्म्स भी आ रहे हैं वो सब टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है। सो लेट मी राइट वन बाय वन। सबसे पहले टेम्परेचर डिपेंडेंट वाली साइड में लिख रहे हैं, तो इट इज परसेंटेज बाय वॉल्यूम। सेकेंड यूनिट इज परसेंटेज बाय वेट बाय वॉल्यूम। थर्ड यूनिट लिखेंगे मोलारिटी, कैपिटल एम वाला। अब डेफिनेशन देखते जाओ, आपको एकदम फटाफट समझ आता जाएगा। देन इट इज फॉर्मेलिटी, नॉर्मलिटी, और अगर हमने ppm बाय वॉल्यूम लिख दिया गया, जो पार्ट्स करें वो वॉल्यूम के टर्म में किए हुए हैं तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा, और ppb बाय वॉल्यूम में। और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यूनिट्स इफ वी राइट, so this is
percentage by weight, mole fraction, and molality. And if you write ppm by mass, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाएगा, एंड ppb by mass, ये भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाएगा. So this is the first phase of the chapter, in which you have to learn first all units, quantitative and qualitative, solute, solvent and solution. And now in the second phase of this portion, अब हमें इन concentrations को interconvert करना सीखना है. That is the primary portion जिस पे questions आते हैं. इसके पहले वाला जो portion है, concentrations क्या होती हैं, units क्या होती हैं, सारी बातें 11th क्लास में भी है. अब इन units को हमें repeat like एक दूसरे से correlate करना सीखना है. So let me start. अभी यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप बताइए. यस, जो भी यूनिट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो चेंज नहीं होगी, और जो भी यूनिट टेम्परेचर डिपेंडेंट है वो अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तो चेंज होगी. ठीक है. सो यहाँ तक क्लियर. अभी आगे बढ़ो. टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यूनिट हुआ परसेंटेज बाय वॉल्यूम, इसमें वॉल्यूम आ रहा है. वेट बाय वॉल्यूम में वॉल्यूम आ रहा है. मोलारिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है, वॉल्यूम आ रहा है. फॉर्मेलिटी मोलारिटी सेम होता है. नॉर्मलिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन था, तो यहाँ पे भी वॉल्यूम आ रहा है. पीपीएम और पीपीबी बाय वॉल्यूम लिखेंगे तो वॉल्यूम आ ही रहा है. ठीक है. मोलारिटी और फॉर्मेलिटी सेम होता है, तो क्वेश्चन में लिख के आएगा. अगर फॉर्मेलिटी लिख के आएगा तो भी आंसर लिखना है, मोलारिटी लिख के आएगा तो भी एक ही बात है. दैट इज सेम. मैंने आपसे बोला ना, फॉर्मेलिटी ओल्ड यूनिट है, आउटडेटेड है, प्रेजेंट टाइम में यूज नहीं करते. मोलारिटी और फॉर्मेलिटी सेम है. नंबर थोड़ी पूछा जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट्स विच आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट. तो ऑप्शन में अगर फॉर्मेलिटी लिखा होगा तो फॉर्मेलिटी मार्क करना है, मोलारिटी लिखा होगा तो मोलारिटी मार्क करना है. सिंपल. ठीक है. टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में परसेंटेज बाय वेट, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, ये तीन इंपॉर्टेंट है. तो कौन सी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, कौन सा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, वो पूछा जाएगा. ठीक है. यहाँ तक क्लियर टू एवरीवन? ओके. सो अब हमें सेकंड फेज ऑफ दिस चैप्टर में इंटर कन्वर्जन सीखना है. Sir, can you explain dilute and concentration solution again? Pardon, I haven't got you. What you said? एक बार रिपीट करो, क्या बोला आपने? Sir, can you explain dilute and concentrated solution once again? बेटा, डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब होता है एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट निग्लिजिबल है. जैसे हमने 100 ml पानी में केवल 1 ग्राम ग्लूकोज मिला दिया, तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया. और अगर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड करते हैं, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड करते हैं, तो उसे हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं. ठीक. Yeah, okay, sir. Thank you. सिग्निफिकेंट अमाउंट लेट्स से 100 ग्राम में हमने सपोज करो 30 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व कर दिया, तो जैसे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन. ठीक है. चलो अब हमें इसके कन्वर्जन स्टार्ट करने हैं. सो आप एक क्वेश्चन लिखो पहले, स्टार्टिंग में वहीं से शुरू करते हैं. सो राइट डाउन अ क्वेश्चन. क्लास के बाद मैं आपके साथ एक होम असाइनमेंट शेयर करूंगा, तो आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, तो आपको इसके आइडिया आ जाएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी. मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस बिलोंग्स टू एनसीईआरटी एंड इजियर बेस्ड क्वेश्चन. फिर टेक्निकल क्वेश्चन हम लोग उसके बाद डील करेंगे. पहले आपको थोड़ा फंडामेंटल सीखना है, तो फंडामेंटल क्वेश्चंस की शीट में आपके साथ शेयर करूंगा, पहले उसको सॉल्व करना है. ठीक है. अब ये क्वेश्चन लिखो. Write down an aqueous solution of glucose is 20% by weight. An aqueous solution of glucose is 20% by weight. Then find its concentration in terms of mole fraction and molality.
An aqueous solution of glucose is 20% by weight. Then find its concentration in terms of mole fraction and molality. An aqueous solution of glucose is 20% by weight. Then find its concentration in terms of mole fraction and molality. ठीक है, तो देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से परसेंटेज बाय वेट रिपोर्टेड है और आपको मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी निकालना है। तो अब यहाँ देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो सबसे प्राइमरी इंफॉर्मेशन मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में बताई थी वहां से करना पड़ेगा। इन द स्टार्टिंग आई सेड दैट सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब ये होता है कि आप उस सॉल्यूशन का कितना भी पार्ट निकाल लो, इट विल हैव द सेम कॉन्सेंट्रेशन। ये पॉइंट समझ आया? When we have a homogeneous mixture, homogeneous का मतलब क्या हुआ? It is have same composition throughout. तो आपके पास अगर 1 लीटर सोल्यूशन है, आप उस 1 लीटर सोल्यूशन में से लेट्स से 10 ml निकाल लो, 20 ml निकाल लो, 30 ml निकाल लो, जितना भी वॉल्यूम निकालोगे सबके लिए कॉन्सेंट्रेशन सेम आएगी। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास 20% बाय वेट है, तो हम कितना भी अमाउंट ऑफ सोल्यूशन मान सकते हैं। सो लेट्स से आई टेक 100 ग्राम सोल्यूशन। तो इस 100 ग्राम सोल्यूशन में 20 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है। यही होता है 20% बाय वेट का मतलब। If I write 20% by weight solution, it means 100 ग्राम solution में 20 ग्राम सोल्यूट होगा, राइट? तो अगर 100 ग्राम solution में 20 ग्राम ग्लूकोज है, तो जनरली आई कैन से इट विल कंटेन 80 ग्राम ऑफ वाटर। क्योंकि एक्वा सोल्यूशन है तो सोल्यूशन में सॉल्वेंट वाटर है, सोल्यूट 20 ग्राम है, मास कंजर्व्ड होता है, 20 ग्राम ग्लूकोज है तो डेफिनेटली 80 ग्राम वाटर हो गया। ठीक है, तो अब अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज निकालना है, so for this I have to calculate moles of glucose upon moles of glucose plus moles of water. So moles of glucose के लिए 20 ग्राम ग्लूकोज है, मॉलिक्यूलर मास 180, ये इसके मोल हो गए। 20 ग्राम ग्लूकोज, मॉलिक्यूलर मास 180 और 80 ग्राम वाटर है, मॉलिक्यूलर मास 18। इसको सिंपलीफाई कर लो। So this comes out to be 1/41. And from here, if I have to calculate mole fraction of water, then it is 1 minus 1/41, which means 40/41. बेटा इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, तो आप उसके किसी भी पार्ट की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लो, इट विल बी द सेम। यही तो मैंने बोला कि सबसे पहला पॉइंट आपको ये क्लियर होना चाहिए। अगर मान लो आपने 200 ग्राम सोल्यूशन ले लिया तो उसमें 40 ग्राम ग्लूकोज होगा, 160 ग्राम वाटर होगा, कंपोजिशन रिमेन सेम। होमोजेनियस का मतलब यही होता है। इफ आई से इट इज होमोजेनियस, इट इज लाइक, दूसरे एग्जांपल समझा देता हूं। सपोज करो हमने एक जग पानी में शुगर डिसॉल्व करी और उस जग के पानी को 10 ग्लास में सर्व कर दिया, तो सबको स्वीटनेस सेम फील होगी ना, बिकॉज इट इज होमोजेनियस सॉल्यूशन। तो आप किसी भी ग्लास की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लो, दैट विल बी द सेम। तो वही हमने टेक्निक अप्लाई कर दी। हमारे पास जो 20% बाय वेट है, तो अगर हम 100 ग्राम सॉल्यूशन लेंगे तो उसमें 20 ग्राम ग्लूकोज होगा डेफिनेटली, तो डेफिनेटली 80 ग्राम वाटर हो गया उसमें। समझ में आया? तो हमने अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन निकाली, तो ये कोई भी सॉल्यूशन होगा सबके लिए सेम कॉन्सेंट्रेशन आएगी। ओके, एंड देन द सेकंड पार्ट व्हिच इज मोलालिटी। तो सेम लॉजिक से मोलालिटी कैलकुलेट कर लो। मोलालिटी निकालने के लिए क्या करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स
in 2000. So number of moles of solute कितना हुआ? 20 gram glucose, molecular mass 180, 80 gram water in 2000. इसको simplify कर दीजिए. So it is 25 by 18, I think. बेटा क्वेश्चन में गिवन है ना, आपने क्वेश्चन ही पढ़ा ध्यान से. In the question it was given that an aqueous solution of glucose is 20% by weight, then find its concentration in terms of mole fraction and molality. तो मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज भी निकाला है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी निकाला है, बाद में मोलैलिटी निकाली है, तो मोलैलिटी तो एक ही आएगी सॉल्यूशन की, क्योंकि मोलैलिटी विद रिस्पेक्ट टू सोल्यूट एंड सॉल्वेंट लिखी जाती है. Clear? So we'll stop here. अब नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का कंटेंट आपको बताऊंगा. अभी अगर आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो वन बाय वन. इफ यू हैव नो डाउट देन यू कैन लीव द मीटिंग. नेक्स्ट मीटिंग की टाइम आपको शेयर की जाएगी, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू. जिनको डाउट्स होंगे वो रुक सकते हैं, बाकी जिनको डाउट नहीं है दे कैन. साहब देख रही तुरंत ही लेफ्ट में जैसे ही बोल रहा है कि आप खत्म नहीं आ रहा, तुरंत सच छोड़ दिए. जिनको डाउट्स होंगे बस वो रुक जाइए थोड़ी देर, उनके डाउट्स अभी क्लियर कर दूंगा. जिनको कोई डाउट नहीं है दे कैन लीव द मीटिंग. थैंक यू सो मच. हेलो सर. हाँ बेटा अभी बस 1 मिनट रुक जाओ, बाकी लोग लीव कर आपने जाए. मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर का 1-1/41 क्यों लिया? बेटा मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज 1. याद आया? हाँ. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकाल लिया है, सॉल्वेंट निकालने के लिए 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो. हाँ. ठीक है. थैंक यू सर. वेलकम. Sir, हाँ, I एक्वा have सॉल्यूशन का मतलब, जस्ट अ मिनट, एक्वा सॉल्यूशन का मतलब हमेशा सॉल्वेंट वाटर होता है. एक्वा सॉल्यूशन मींस सॉल्वेंट इज वाटर. हाँ आप पूछ रहे थे, कोई डाउट पूछो बेटा. Sir, I had doubt in that molality. Just now you said salt at some now. Molality means? Pardon? What you said, I haven't got you. Sir, right now you just showed us a sum of molality. No, I didn't understand that. Oh, last formula, last question which I have called. Yeah. So molality is actually formula is number of moles of solute upon mass of Yes, solvent sir. in grams in 2000. ये formula है. So glucose is 20 grams, so moles is 20 by 180. Okay, and water sir. is 80 grams, so divide by 80 in 2000. Okay. And then you simplify, it becomes 25 by 18. Thank you, sir. Welcome. Yes, जो बचे हैं उनको और कुछ पूछना है तो पूछो फटाफट, अदरवाइज यू कैन लीव. Hello, sir. हाँ वाले. Sir, I have a doubt that in supersaturated solution, we first increase the temperature and Okay. then we decrease it, right? Okay. So, and in other note, you have given that a solution can be supersaturated at a temperature less than 3 degrees Celsius. Okay. So, I'm not getting like, first we to increase and then lower, or just lower down the temperature for supersaturated? There are both ways. If you have to prepare a supersaturated solution, what you'll do, you will increase the temperature, dissolve more salt, and then reduce the temperature. Okay. So it is lesser temperature with respect to a solution in which you have dissolved more amount of solute with respect to a saturated solution. So if you can prepare in both ways. If you don't want to dissolve solute, you will simply reduce the temperature. You directly get supersaturated solution. Or else you want a supersaturated solution at the same temperature at which it is saturated. Then what you will do, first you will increase the temperature, dissolve more salt, and then reduce the temperature.
Got the Okay. difference? Okay. Yes, If sir. we have a Yes. saturated solution at 20 degrees Celsius and you want a super saturated solution at 20 degrees Celsius, Hmm. then first you dissolve salt, increase Hmm. temperature, and then again Okay. come to the 20 degrees Oh. Celsius. Oh. Got it? Okay. 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 Thank you so much, sir. Welcome. Yes, और किसी का कोई डाउट है तो पूछे फटाफट. Yes, sir. Yeah. हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ. Why do we use the subscript Sp for ionic product and solubility product? Beta, it is solubility product. Na? Sp means solubility product. The term means that thing. When we are writing equilibrium constant with respect to solubility, Does it depend on concentration? Pardon? See, like just in chemical equilibrium, जैसे हम लोग use करते हैं Kc, Kp, acid के लिए Ka, base के लिए Kb, water के लिए Kw. Similarly, for solubility we use Ksp. Okay. So Does it is a it different depend type on of equilibrium concentration or constant. temperature? Yeah, definitely it is equilibrium constant, so dependent on temperature. And what about concentration? Concentration dependency. It is like this. I told you those terms which are volume dependent, that those are temperature dependent because volume depends on temperature. And those which are mass dependent, so mass is independent of temperature. So that won't be a trouble. Okay. So all the concentrations जो volume dependent है उनमें सब में temperature dependency आएगी और जो volume independent है यानी mass dependent है वो सब temperature independent होंगे. Okay. Fine, sir. Sir, you will be sharing Okay. slides, no?